Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching online class in Discordis Public School. In my previous lecture, or in my previous class, I provided you the notes of Geography Chapter 1. Our environment. I hope you all have made that the states that I have completed or not. And one more thing, that I would like to start the main chapter today, that is History Chapter 1, India in the Medieval Period. As you can see, I have written it on the board as well. So India in the Medieval Period, it means what was the condition of the society in the Medieval Period. So Medieval Period means what is the meaning of the Medieval Period. So Medieval Period is the time from 700 to 1750. It means 1050 years after Common Era. It is in Common Era actually. So 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के पीरियड को हम मिडिवल पीरियड के नाम से इतिहास में जानते हैं, मध्यकालीन इतिहास. The medieval period of India witnessed large-scale changes in the society, economy, politics, religion and culture. हमारे इस मध्यकालीन इतिहास के दौर में भारत में बहुत प्रकार के परिवर्तन और उद्भव देखे हैं. हमारे समाज ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव हमारे देश में बहुत सारे हुए. For better understanding of these changes, the period is subdivided into early medieval period and the late medieval period. इस चीज को बेहतर ढंग से समझ पाने के लिए इस पीरियड को 700 से लेकर 1750 तक के पीरियड को दो हिस्सों में बांटा गया है. अर्ली medieval period and the early medieval period and the late medieval period. पहला शुरुआती medieval period और बाद वाला आखिरी medieval period. So the early medieval period broadly spans from the 8th to 12th century. 8 से 12वीं शताब्दी तक की बात को हम early medieval period मानते हैं, और जो उसके बाद का पीरियड है 1200 से लेकर के 1750 तक, उसको हम लेट medieval period मानेंगे. During which the Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas, Rajputs were dominant forces. ये सब वंश के राजा हुए हमारे देश में. अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में लोगों ने राज किया. The late medieval period spans from the 13th to the 18th century. 13 से लेकर 18वीं शताब्दी को late medieval period का टर्म दिया जाता है, नाम दिया जाता है. The period starts with the establishment of the Delhi Sultanate and extends till the region of the Mughals, till the reign of the Mughals. 13वीं शताब्दी का से लेकर के जो आखिरी तक ये पीरियड चला, ऐसे मुगल रीजन, मुगल कालीन भारत के नाम से भी जाना जाएगा उस पीरियड को, और मुगल काल का उसमें वर्णन ज्यादातर है. चेंजिंग नेम्स ऑफ रीजन्स इन इंडिया. भारत में जगहों के नाम बदलने की जो परंपरा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? जैसा कि आप देखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्हें नाम बदलने का काफी शौक है. इन लोगों ने भी बहुत सारे जगहों का नाम बदला है. इसी तरह से ये इतिहास बहुत पहले से चला आ रहा है, जहाँ पे लोग जगहों के नामों को अलग अलग राजाओं ने अलग अलग शासनकाल में मुगलों ने जगहों के नाम बदले. उसी प्रकार से आज जिन जगहों के नाम बदले गए थे, उन्हें पुनः आज बदलकर प्रयाग का नाम, पहले प्रयाग हुआ करता था, प्रयागराज हुआ करता था, बाद में मुगलों ने इसे मुगल सराय, इसे इलाहाबाद बना दिया. तो इलाहाबाद को फिर से बदल करके योगी आदित्यनाथ ने क्या बना दिया, अभी फिर से प्रयागराज बना दिया. The first article of the Constitution of India states that India, that is Bharat, shall be a union of states. The Republic of India is called Bharat, while Hindustan is mostly used in historical context, especially British India. तो इंडिया का दूसरा नाम भारत है. भारत का नाम जो है, ये भारत का ऑफिशियल नाम होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इसे हिंदी में भारत कहा जाएगा. जहां पर अंग्रेजी ब्रिटानिया हुकूमत के दौरान भारत को हिंदुस्तान के नाम से ज्यादातर उल्लेख इसका किया गया है. Today these three terms are interchangeably used to refer the political and the national entity that is identified as India. भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया और हिंदुस्तान सभी भारत के ही नाम है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग कालखंड में अलग अलग नामों से भारत को संबोधित किया. The name Bharat
is derived from the name of the Bharata, son of Dushyanta, a legendary ruler mentioned in the Mahabharata. महाभारत के एक किरदार थे जिनका नाम दुष्यंत हुआ करता था। दुष्यंत के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था भारत, और भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा, जो कि बहुत ही वीर और बहादुर थे। Similarly, the name of India has been in use since the 17th century. 17वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ इंडिया नाम फैशन में आया। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश टर्म derived from the Greek via Latin word India, which stood for the region beyond the river Indus, जो इंदु नदी के किनारे बसा हुआ जगह हो, जिसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इंदु नदी इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान हो गया। तो इंडिया भी उसी तरह से हुआ। The name is ultimately derived from the Sindhu, which is in Sanskrit the name of the river. इंदुस नदी का नाम संस्कृत में सिंधु नदी कहा गया है, संस्कृत में इसका नाम, और इंदुस नदी के किनारे बसे हुए देश को हम लोगों ने क्या नाम दिया? इंडिया। The rulers in the Sultanate and Mughal periods called their Indian domination Hindustan. भारत में जब हम मुगल शासन कर रहे थे इसे हिंदुस्तान का नाम दिया। But the term Hindustan did not carry the same meaning as it does today. हिंदुस्तान का मतलब उस वक्त वो नहीं हुआ करता था जो आज है इसका मतलब। For example, Minhaj as-Siraj, a chronicler in the 13th century CE, used the term to denote the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna under Delhi Sultanate. इस इलाके को, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच के इलाके को, गंगा जमुना के बीच की जमीन को इन लोगों ने टर्म दिया। The early 16th century Babur used the term Hindustan to describe the geography, fauna and the culture of the inhabition of the subcontinent. भारत के इस भारतीय उपमहाद्वीप के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के नामों को उल्लेख करने के लिए बाबर ने पहली बार इस जगह का नाम हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान became synonymous with India. यह इसका पर्यायवाची शब्द बन गया only during British राज। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इंडिया और हिंदुस्तान एक दूसरे का सिनोनिम्स बन गए। Thus, while the idea of the geographical and the cultural entity like India did exist during the medieval period, the term Hindustan did not carry the political and the national meaning which we perceive today. इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। हिंदुस्तान शब्द कहीं का इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हम, परंतु पहले ये दूसरा इसका अर्थ हुआ करता था। सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड, इस दरमियान जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन के सोर्स बने या स्रोत बने वो क्या क्या थे? We have learned that the historians depend on the sources such as manuscript, inscriptions, building artifacts, coins, etc. to study the past. However, on the distinct feature of the sources of the medieval period is that the number of the variety and literary textual records increased noticeably during this period. इस दरमियान 700 से 1750 के दरमियान हमारे यहाँ बहुत तरह के इंफॉर्मेटिव सोर्सेस अवेलेबल हो गए, जिसमें हम लोग लिखी हुई बातें, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्शंस और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह हमें मिले, जिसके आधार पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक बड़ा हो गया। लिटरेरी सोर्सेस के बारे में अगर बात करें, पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना इन अराउंड 1000 BCE, यानी आज से लगभग 2200 वर्ष पहले पेपर का जो खोज हुआ था ये चाइना में हुआ था। It was gradually introduced to the rest of the world, धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गया। In India, literates and chroniclers began writing chronicles of the rulers, petitions, judicial records, accounts and texts on it. इसी तरह पेपर में ये लिखा जाने लगा, बहुत तरह के कर, टैक्स, पिटीशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स ये सब लिखे जाने लगे अलग अलग राजाओं के राज दरबारों में। The teachings of the saints and the traders transactions were also recorded on the paper. व्यापारी अपने कारोबार के ब्यौरे को उस पर लिखने लगे। गुरुओं के शिक्षा पद्धति को दी गई उनकी इंफॉर्मेशन को पेपर पर लिखा जाने लगा। Earlier manuscripts were collected only by the wealthy people, rulers, monarchs and temples and stored in the archives. पहले ये राजाओं, मंदिरों, गुरुओं और व्यापारियों के द्वारा ही पेपर का इस्तेमाल किया जाता था और इसे संग्रहालय में रखा गया। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to the historians. इतिहासकारों को इससे बहुत सारी जानकारी मिल पाती है। However, historians have to
be very careful while using these old manuscripts, since there was no printing press in those days. Scribes copied manuscripts by the hand. इस तरह से उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस हुआ नहीं करता था और नहीं होने के कारण क्या सारी चीजें हाथ से लिखी जाती थी. As scribes copied manuscripts, they introduced small changes unknowingly. इस तरह से कई बार उसको कॉपी करते हुए थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन होता चला गया. मूल चीजें जो लिखी जाती है उसको कोई कॉपी करेगा तो थोड़ा परिवर्तन उसमें हो ही जाएगा. And there was a possibility of these small changes went on to the increasing generation after generation to such an extent that the manuscripts of the same text became substantially different from the one another. इस तरह से पीढ़ियां चलता गया ये प्रयास. एक बात लिखी गई, लिखते 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 कई पीढ़ियों के बाद वो साफ ही बात का पूरा ही जो उसका संदर्भ था वो बदल गया. The Midway Chronicles were written by the contemporary authors who were either court historians or the travelers who came to India. These chronicles are full of information on contemporary political and economical conditions. However, such writings are not free from the prejudice and bias of the writers. Therefore, they are not always reliable. उस जमाने में भी जो बातें लिखी गई, जो राजाओं के दरबार में रहने वाले राज दरबारियों ने राजा के लिए लिखा, ज्यादातर उसमें राजाओं की प्रशंसा ही लिखी जाती थी. कभी कोई उनको क्रिटिसाइज करने का साहस नहीं करता था. इसलिए वो बहुत ही पक्षपात और बायस भरा अकाउंट्स था जिस पर ज्यादा भरोसा नहीं. इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स एंड देयर अकाउंट्स. बहुत सारे विदेशी हमारे यहाँ यात्री आए जिन यात्रियों ने अपने अनुभव को लिखा है. उनमें से क्या क्या है? अल-मशौदी, he was an Arab traveler who gave an extensive account of India. Al-Biruni, Ibn Battuta, Domingo Paez, William Hawkins, Sir Thomas Roy. इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे क्या क्या किन्होंने लिखा, कब लिखा, किसके बारे में लिखा, जान लीजिएगा. इम्पोर्टेंट मिडिवल लिटरेचर. इस जमाने में कुछ चीजें लिखी गई, जो किताबें लिखी गई, किसने लिखा इसको आपको देखिए. कल्हाना ने लिखा राज तरंगिणी. राज तरंगिणी नाम का किताब लिखा गया था, कल्हाना ने लिखा था. दूसरा अल-बिरूनी ने लिखा तारीख अल हिंद. चंदबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज राशो. अमीर खुसरो ने लिखा तारीख अलाई. बाबर ने लिखा तुजू के बाबुरी और बाबर नामा. मिनहाज सिराज ने लिखा ताकते तबाकत ये नसीरी. जियाउद्दीन बरानी ने लिखा तारीख फिरोज शाही फतवाए जहांदरी. अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा. मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत, जिस पर की पद्मावती नाम की फिल्म भी आई थी. तो इस तरह की बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है और इस चैप्टर को आगे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा जो कि आपको करना चाहिए. ये आप करेंगे कि जो भी इसमें किताबें जिस ट्रैवलर ने लिखी है इसके नाम को लिख के इसको याद करना, प्लस ये जो इंपॉर्टेंट मिडिवल लिटरेचर है इसको भी आप याद करेंगे, रफ कॉपी में लिखकर मुझे भेजेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.